Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, myself Professor Uday Bhukre and now I am welcoming you on your own YouTube channel Ekeeda. If you are watching this channel for first time, I request you to subscribe to our channel Ekeeda and also press bell icon for your latest notifications. Friends, you are going to learn today for CA Intercourse Advanced Accountancy subject, topic name Liquidation of Companies, question number 5, which is on your screen right now. M Limited resolved on 31st December 2016 that company be wound up. कंपनी बंद करना है voluntarily. The following was trial balance extracted from its books as on that date. Equity shares of 10 each, amount is given 2 lakhs. If amount is 2 lakhs, I can safely say there must be 20,000 equity shares. 9% preference shares of 10 each, amount is 1 lakh, so I can easily say it must be 10,000 preference shares. Plant less depreciation of 85,000, amount is given 2,15,000. Stock in trade, trade receivable, trade payable, bank balance, preliminary expenses, profit and loss account balance on 1st January 2016, that is at the beginning of the current year. And they have also mentioned trading loss for the year is 24,000. Besides that, preferred dividend declared and paid during the year is 6,000. Outstanding expenses including mortgage interest is 25,000. 4% mortgage loan is 2 lakhs. In this way, they have given you a trial balance. For us, it doesn't matter whether it is a trial balance or a balance sheet. It is one and same. अगर आप ठीक से देखोगे तो ये पूरे ट्रायल बैलेंस में आपको सिर्फ असेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है whether they give you a balance sheet or they give you a trial balance. Let's see the next part of this question. On 1st January 2017, the liquidator sold M Limited's plant for rupees 2,05,000 and stock in trade for rupees 2 lakhs. The sale was completed in January 2017 and the consideration satisfied as to 2,62,200 in cash and as to the balance in 6% debentures of the purchasing company issued to the liquidator at a premium of 2%. आराम से पढ़ो, आपने दो असेट बेचे थे. पहला असेट था प्लांट 2,05,000, दूसरा असेट था स्टॉक इन ट्रेड 2 lakhs. तो ये दोनों अमाउंट को आप अगर जोड़ दोगे तो आपका अमाउंट बनता है 4,05,000. सो स्टूडेंट्स, टोटल कंसिडरेशन इज 4,05,000, जिसके अंदर से आपको कैश में कितना मिला है 262,200. दैट मीन्स रिमेनिंग अमाउंट विल बी हाउ मच? लेट्स सी. रिमेनिंग अमाउंट कम्स टू 142,800. ये जो बैलेंस अमाउंट है ये आता है 142,800. उन्होंने कहा इसके लिए आपको क्या मिले? 6% डिबेंचर्स ऑफ परचेसिंग कंपनी इशूड टू द लिक्विडेटर एट अ प्रीमियम ऑफ 2%. मतलब आपको ये जो डिबेंचर्स है वो 2% प्रीमियम में मिला है. तो इसका फेस वैल्यू कितना हो सकता है? वी कैन वर्क आउट. इट इज 142,800 डिवाइडेड बाय 102%. आपको मिल जाएगा इसका फेस वैल्यू 1,40,000. इसका फेस वैल्यू बन जाएगा. फेस वैल्यू विल बी 1,40,000. फेस वैल्यू विल बी 1,40,000. The remaining steps in the liquidation were as follows. The liquidator realized 52,000 out of the book debts and the cost of collection amounted to rupees 2,000. That means debtors realized to you net amount of 50,000. Next, number 2. The loan mortgage was discharged on 31st of January 2017. आपको बैलेंस शीट दिया था 31st December 16 का, लेकिन आपका सेटलमेंट कब हो रहा है? 31st January. दैट मीन्स एक महीने का इसका इंटरेस्ट भी आपको देना है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट फ्रॉम 31st July 2016. अभी ये लाइन का रिलीवेंस क्या है जरा चेक करो. आपका जो ट्रायल बैलेंस था उसके अंदर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए थे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज. लेट मी शो यू दैट. ये आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है इंक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट. तो आपका मॉर्गेज इंटरेस्ट जो है वो 6 मंथ्स का होगा. तो 6 मंथ्स का मॉर्गेज इंटरेस्ट कितना आता है ऑन 4% मॉर्गेज लोन ऑफ 2 lakhs? इट कम्स टू 4,000. दैट मीन्स
Out of 25,000, 4,000 is a mortgage interest and remaining 21,000 must be your other outstanding expenses. They are saying the loan mortgage was discharged on 31st January 2017 along with the interest from 31st July 2016. 31st July 2016 से लेके 31st January इट कम्स टू 6 months. 6 month कैसे सर? 6 months आता है 31st जुलाई 16 से लेके 31st जनवरी तक. अगर मैं 31st जुलाई 16 से लेके आगे बात करूंगा तो अगस्त ऑनवर्ड, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 5 महीने का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपको ट्रायल बैलेंस में रहेगा. तो आपका जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 5 मंथ्स का वो आपको ट्रायल बैलेंस में रहेगा. लेट मी शो यू दैट. ये जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है इसके अंदर इंक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट, तो इट मस्ट बी फॉर हाउ मेनी मंथ सर? इट मस्ट बी फॉर 5 मंथ, 31st जुलाई ऑनवर्ड. तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना बनता है? लेट मी कैलकुलेट एंड टेल यू. मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट बनता है आपका 3,333 और बाकी का आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है. लेकिन आपने पे किया है ऑन 31st ऑफ जनवरी. आपने कब पे किया है? ऑन 31st जनवरी. मतलब आगे का 1 महीने का जो इंटरेस्ट है वो आपको बैलेंस शीट के डेट का बाद का है. मतलब ओवरऑल आपने इंटरेस्ट पे किया है 6 मंथ्स का, जिसमें से 5 मंथ जो है वो लास्ट ईयर के और 1 मंथ करंट पीरियड का है. सो लेट अस राइट डाउन इन आवर क्वेश्चन. Out of these 6 months, 5 months belongs up to the balance sheet and 1 month belongs from the balance sheet up to the 31st of January. Let's read the next. Creditors were discharged subject to 2% discount. तो creditors में से कितना परसेंट डिस्काउंट आपको माइनस करना है? 2% when you make the payment. ये आपके ट्रेड पेबल है जिसके अंदर से आपको माइनस करना है 2% डिस्काउंट. क्या माइनस करना है सर? 2% डिस्काउंट. And outstanding expenses excluding mortgage interest were settled for ₹2,000. मतलब आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो आपने सेटल किए 2,000 में एक्सक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट. मतलब ये जो आपके आउटस्टैंडिंग है इसको आपको पूरा सेटलमेंट आपने 2,000 का किया है एक्सक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट. एक्सक्लूडिंग मॉर्गेज इंटरेस्ट, मॉर्गेज इंटरेस्ट तो आप अलग से दे रहे हो. On 30th June 17, 6 months interest on debenture was received from M Limited. सर ये M Limited कौन सा है? आपको पहले पैराग्राफ में कुछ डिबेंचर्स मिला था जिसका फेस वैल्यू 1,40,000 था और 30 जून को आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट डिबेंचर्स के ऊपर मिला है. तो हाउ यू विल कैलकुलेट दिस? 1,40,000 into 6% into 6/12, इट इज 4,200. तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला होगा इसके ऊपर? 4,200. तो आपका इंटरेस्ट होता है 4,200. फोर्थ इंफॉर्मेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹3,000 एंड लिक्विडर्स रेम्यूनरेशन ऑफ 3% ऑन डिसबर्समेंट टू द मेंबर्स. मेंबर्स को जो पैसा दिया जाएगा उसका 3% किसको मिलेगा? आपके लिक्विडेटर को एज हिज रेम्यूनरेशन. were paid on 30th June 2017 when the preferential holders were paid out in cash. तो preferential holders को cash दिया गया and debentures in M Limited and the balance of the cash was distributed ratably among the equity shareholder. तो ठीक है, prepare a liquidator statement of account showing the distribution. तो हम लोग को एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा liquidator statement of account का. Friends, I am ready with the format. How to make the payment? उसके लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा. Let's prepare the working note. In order to find out the payment, we have to find out the cash flow. कैश कैसे आया और कैश कैसे गया उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे ये वर्किंग नोट में. अभी हम लोग को क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा कितना कैश हमारे पास था और हम लोग को आगे क्या क्या मिला. Let us see the question. आपको यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया हुआ है. प्रेजेंट बैंक बैलेंस इज 74,000. इसके साथ आपको ऐड करना पड़ेगा असेट्स रियलाइज्ड. स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हो प्लांट और स्टॉक मिला के आपने कितने में सेल आउट किया था? 4,05,000, जिसमें से कैश कितना मिला है? 262,200 एंड रिमेनिंग अमाउंट जो है 142,800, जिसके लिए आपको क्या मिला है? डिबेंचर्स मिला है एट 2% प्रीमियम. सो आई विल राइट दैट. प्लांट एंड स्टॉक दोनों मिला के अपना अमाउंट बनता है 4,05,000, जिसमें से कुछ कैश मिला था
और कुछ 6% डिबेंचर्स मिले थे। सिक्स परसेंट डिबेंचर्स ऑफ एम लिमिटेड। कैश आपको मिला था 260 टू 200, तो डिबेंचर का अमाउंट बनता है 140 टू 800। ये जो डिबेंचर्स है स्टूडेंट्स, इसका फेस वैल्यू है 1,40,000। ये मैंने क्यों लिखा है आपको पता है, बिकॉज आगे चल के इसका इंटरेस्ट भी मिलने वाला है आपको, और इंटरेस्ट आपको मिलता है फेस वैल्यू के ऊपर। सो वी विल वेट एंड सी। पॉइंट नंबर 1 से दैट कि आपके डेटर्स में से नेट कितना रियलाइजेशन हुआ है, 50,000। द लोन मॉर्गेज वॉज डिस्चार्ज, ये तो बाद में आएगा। क्रेडिटर्स वेरे डिस्चार्ज, ये भी बाद में आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखो आपको दिए है, ऑन 30 जून 6 मंथ्स इंटरेस्ट on debenture was received from M Limited, 6 months interest on 1,40,000। ऑलरेडी आपने कैलकुलेट करके लिखा है 4,200। पॉइंट नंबर 3 में आपको इंटरेस्ट जो मिला है वो आपका लास्ट रिसीट है, तो मेरा रिसीट्स अमाउंट खत्म हो गया यहाँ पे। ये कैश में आपका पेमेंट का ऑर्डर फॉलो होता है। पहला पेमेंट होता है आपका लीगल एक्सपेंसेस का, अपने पास कोई लीगल एक्सपेंसेस नहीं है। दूसरा पेमेंट आपको होता है लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन ऑफ 3% ऑन डिसबर्समेंट टू द मेंबर, मतलब अभी तो हम लोग उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, वी विल वर्कआउट लेटर ऑन। एट द मिनट तो मैं इसको नहीं लिख सकता हूं, तो अभी तो मुझे यहाँ पे डैश लिखना पड़ेगा, तो ये आपका डैश यहाँ पे मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट इज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। आपको लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पे 3,000। लेट मी फाइंड आउट व्हाट इज आवर रिमेनिंग कैश। नाउ व्हेन यू मेक द पेमेंट, यहाँ पे आपको वही ऑर्डर फॉलो करना है जो आपने सीखा था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। सबसे पहले आपको लिस्ट बी को अंडरस्टैंड करो। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब जो असेट स्पेसिफिकली मॉर्गेज है उसको पहले पे करना होता है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली मॉर्गेज असेट नहीं है, स्पेसिफिकली कोई असेट मॉर्गेज नहीं हुआ है। उसके बाद में आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे करना होता है। ये क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं है। नेक्स्ट लिस्ट डी में आपको आपको पे करना पड़ता है लाइबिलिटी विद अ फ्लोटिंग चार्ज। लाइबिलिटी विद अ फ्लोटिंग चार्ज, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लाइबिलिटी विद अ फ्लोटिंग चार्ज। हियर आई विल टेक 4% मॉर्गेज लोन, और उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अप टू द बैलेंस शीट डेट जो 5 मंथ्स का है। एंड एज वी डिसाइडेड इट इज 3,333। चेक करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने डिसाइड किया है मेरा इंटरेस्ट कितना है, 3,333 अप टू द बैलेंस शीट डेट और अप टू योर ट्रायल बैलेंस डेट। इसके बाद का इंटरेस्ट हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे। ये हो गया मेरा बैलेंस कैश। आफ्टर दिस यू हैव टू पे योर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में पहला पेमेंट आपका है ट्रेड पेबल का। लेट्स सी द क्वेश्चन। आपके ट्रेड पेबल से 75,000 जिसको 2% डिस्काउंट में डिस्चार्ज करना है। उसके अलावा आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है अदर देन इंटरेस्ट। ऑलरेडी मैंने डिसाइड किया था कि अदर देन इंटरेस्ट जो भी आपका अमाउंट है उसको कितना पे करना है, 2,000 एज पर द क्वेश्चन। $75,500 आई पेड टुवर्ड्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जिसके अंदर ट्रेड पेबल 2% डिस्काउंट में सेटल किया है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एक रेडीमेड अमाउंट आपको दिया था कि 2,000 पे हुआ है। लेट्स फाइंड आउट द रिमेनिंग अमाउंट विद अस।
आफ्टर यू पे योर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, आपका ये जो मॉर्गेज लोन है उसके ऊपर आगे का 1 महीने का इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट 31 दिसंबर के आगे का है, 1 जनवरी टू 31 जनवरी। मॉर्गेज लोन आपका था 2 लाख रुपीज का 4%, बट ओनली फॉर 1 मंथ, इट इज 667। तो स्टूडेंट्स, आपका बैलेंस कैश है 2,50,700। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यहाँ पे 3,000 हम लोगों ने कम लिया था, जो यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिया है 2,50,700। अभी यहाँ पे आपको पे करना है शेयर होल्डर्स को, लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू पे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। उसको 3% मिलेगा ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर। ये अमाउंट अवेलेबल है आपके पास शेयर होल्डर्स के लिए, जिसमें से रेम्यूनरेशन पे होगा और बाकी का अमाउंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स को। मतलब शेयर होल्डर्स को अगर आपको 100 डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रेम्यूनरेशन बनेगा 3, तो कहना से ये जो अमाउंट है ये आपका 103 हो जाएगा। तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा इसमें से रेम्यूनरेशन कितना होगा बाय डूइंग अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दिस अमाउंट कम्स टू 7302। What will be our remaining cash? Your remaining cash will be 243,398. ये आपका रिमेनिंग कैश है, जो अभी आप फाइनली किसको दोगे? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स अपने पास दो टाइप के हैं, प्रेफरेंशियल होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर। पहले डिस्चार्ज किसको किया जाएगा? प्रेफरेंशियल होल्डर्स को। प्रेफरेंशियल होल्डर्स को आपको सिर्फ प्रेफरेंशियल कैपिटल देना है। व्हाट इज अवर प्रेफरेंशियल कैपिटल? 1 लाख। This you have discharged in cash as question is giving. Let us see the remaining amount. बाय द वे यहाँ पे मैंने बैलेंस कैश लिखा है, लेकिन ये एक्चुअली बैलेंस अमाउंट है जिसके अंदर डिबेंचर्स भी इंक्लूडेड है। वी विल सी दैट। ये आपको पेमेंट करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और ये पूरा का पूरा हम लोगों ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया है। और इसके अंदर से डिबेंचर्स का पोर्शन कितना होगा? 140 to 800। इसमें से 140 to 800 डिबेंचर्स का पोर्शन होगा और बाकी का कैश होगा। बट वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट ब्रेकअप, तो वी आर पेइंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर 143,398, और आपका रिमेनिंग कैश बन जाएगा या फिर रिमेनिंग बैलेंस बन जाएगा नील। याद रखना, आउट ऑफ दिस 143,398 प्रैक्टिकली वी हैव पेड डिबेंचर्स ऑफ 140 to 800, और बाकी का हम लोगों ने क्या दिया है? कैश दिया है। दैट वी विल डिस्प्ले। लेट मी रिवाइज दिस एंटायर वर्किंग टू यू। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बिगिनिंग किया था बैंक बैलेंस 74,000, असेट्स रियलाइज 459,200, जिसका टोटल बनता है 533,200, जिसमें से आपने पहले लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन लेने का कोशिश किया, क्योंकि आपको अमाउंट नहीं पता था इसके लिए ये कंसीडर नहीं किया था। फिर आपने लिक्विडेशन एक्सपेंस माइनस कर दिए 3,000, तो आपका अवेलेबल कैश बन जाएगा 5,30,200, जिसमें से आपने मॉर्गेज लोन और उसका इंटरेस्ट अप टू द बैलेंस शीट पे किया था 203,333, तो आपका रिमेनिंग अमाउंट बन जाता है 326,867। उसके बाद में आपने पे किया था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, जिसका टोटल पेमेंट आता है 75,500, बचा हुआ अमाउंट बन जाता है 251,367। ये 251,367 वापस मैंने लिख दिया है, और इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन बैलेंस शीट के बाद वाला वो भी यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है। बैलेंस कैश, जहां पे मैंने बैलेंस कैश दिया है वो एक्चुअली बैलेंस अमाउंट है, जिसके अंदर डिबेंचर्स भी इंक्लूड है, ये वाले। उसके बाद में मैंने लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन वर्कआउट किया है। क्वेश्चन ने कहा है कि लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन 3% ऑन द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर अगर 100 है तो उसका रेम्यूनरेशन बनेगा 3। इसका मतलब मेरा अवेलेबल कैश कितना गिना जाएगा? 103। बेस्ड ऑन दैट मेरा रेम्यूनरेशन लिक्विडेटर का कितना बनेगा? 7302। रिमेनिंग अमाउंट वंस अगेन कम्स टू 243,398। प्रेफरेंशियल होल्डर्स को पहले डिस्चार्ज किया है, इट इज पेड इन कैश एज क्वेश्चन सेज,
एंड देन वी पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर, और इक्विटी शेयर होल्डर्स का पेमेंट जो है उसके अंदर डिबेंचर्स भी इंक्लूड है। तो सर ये आपने कैसे याद रखा? कुछ बड़ी बात नहीं है, आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सीखा होगा, उसमें जो भी आपका फॉर्मेट है वही मैंने फॉलो किया है। लिस्ट बी में आपका था सिक्योर क्रेडिटर्स, यहाँ पे कोई सिक्योर क्रेडिटर्स नहीं था। लिस्ट सी में आपका था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, आपके पास कोई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं था। लिस्ट डी में आपका था लायबिलिटी विद फ्लोटिंग चार्ज, जो मैंने यहाँ पे लिया है। लिस्ट ए में आपके पास आता है अनसिक्योर क्रेडिटर्स, वो यहाँ पे मैंने लिया है। एक ही एडिशनल आपका ब्रेक हुआ है, वो है इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज लोन। ई के बाद में आपका आता है एफ, एफ इज फॉर शेयर होल्डर, दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और जी यू पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर। इन दिस वे वी सेटल ऑल आवर पार्टीज। अभी इसको सिर्फ एक प्रॉपर पैटर्न में आपको लिखना पड़ेगा, ये पूरा वर्किंग नोट को, और वही पैटर्न आपका मेन आंसर है, तो मैं बना रहा हूं। Now while preparing this statement, I want you completely focus on your working note. There is no need to look here and there. We can just follow our working note. आपके वर्किंग नोट में पहले पार्ट में मैंने यहाँ पे सभी रिसीट्स लिखे हुए हैं, तो लेट मी राइट दैट रिसीट्स नाउ। असेट्स रियलाइज अदर देन स्पेसिफिकली मॉर्गेज, कोई भी स्पेसिफिकली मॉर्गेज असेट नहीं है हमारे पास, तो बाकी सभी असेट में यहाँ पे लिख देता हूँ कितना कितना रियलाइज हुआ है बेस्ड ऑन अवर वर्किंग नोट। ये आपके वर्किंग नोट में लिखा है प्लांट एंड स्टॉक का इतना अमाउंट मिला है, डेटर्स का इतना अमाउंट मिला है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का इतना अमाउंट मिला है, यही मैं कॉपी कर रहा हूँ। आफ्टर प्लांट एंड स्टॉक आपको आगे दिया था डेटर्स का रियलाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 4200। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये सब आइटम्स लिख दिए जहां से आपको पैसे मिले हैं। इसके अलावा और कोई भी रिसीट हमारे पास नहीं है। देयर आफ्टर आई हैव टू शो पेमेंट। पेमेंट में सबसे पहले आप लिखते हो लीगल एक्सपेंस, लेकिन अपने पास है नहीं। फिर आप लिखते हो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन इनिशियल स्टेज में हम लोगों ने नहीं निकाला है, वो हम लोगों ने बाद में निकाला है 7302। फिर आप लिखते हो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। फिर आप लिखते हो लायबिलिटी विद फ्लोटिंग चार्ज। लायबिलिटी विद फ्लोटिंग चार्ज में हम लोग ले रहे हैं 4% मॉर्गेज लोन, उसका प्रिंसिपल अमाउंट था आपका 2 लाख, और उसका इंटरेस्ट आपने पे किया था ऑल टुगेदर 6 मंथ्स का। लेट मी शो यू। ये आपका इंटरेस्ट जो है वो आपने यहाँ पे लिखा है 3333, और यहाँ पे आपने वापस इंटरेस्ट पे किया है 667, दोनों मिला के आपका इंटरेस्ट बनता है 4000। आफ्टर दैट वी नीड टू राइट क्रेडिटर्स। अंडर क्रेडिटर्स आपको पहले लिखने होते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। हमारे पास कोई भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स नहीं थे। एंड देन वी राइट अदर्स। अदर्स आर बेसिकली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। वर्किंग नोट में चेक करो, आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपने पे किए 75,500। देन यू नोट डाउन प्रेफरेंशियल होल्डर्स, उनको कितना पे किया आपने। प्रेफरेंशियल होल्डर्स को आपने 1 लाख रुपया पे किया, विच इज नथिंग बट द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए का। आप ठीक से चेक करो, आपको 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, तो ऑब्वियसली पर शेयर आपने 10 रुपया पे किया है। $1 lakh. Then we have to consider equity shareholder. वर्किंग नोट में आप चेक करो, आपके इक्विटी शेयरहोल्डर्स का पेमेंट बनता है 143,398। ठीक है, कितने शेयर से चेक करो। शेयर है 20,000, सो डिवाइड बाय 20,000।
पर शेयर अमाउंट कुछ आ रहा है 7.1699, तो रफली मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 7.17 पर शेयर। याद रखना इसमें से कुछ डिबेंचर्स है और कुछ कैश है, सो लेट मी राइट दैट। कैश इज 598। तो ये दोनों अमाउंट हम लोगों ने पे किए। अभी आपको ये अकाउंट क्लोज करना है, लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्लोज करना है, एंड होपफुली इट शुड टैली। रिसीट मस्ट बी इक्वल टू पेमेंट्स। इन दिस वे यू कैन नोटिस स्टूडेंट्स, आपका टोटल दोनों साइड का सेम है, मतलब आपको जितना मिला उतना आपने पे किया। क्वेश्चन ट्रिकी है, आई वांट कि आप इसको कम से कम 2 बार देखो तो ही आपको इसको ठीक से समझ में आएगा, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिर भी कोई डाउट होगा, फिर भी आपको कुछ लगता है कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए सर को, यू कैन प्लीज पुट इन आवर कमेंट बॉक्स, सो वी विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेरीज एट अर्लिएस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो स्टूडेंट। बिफोर आई क्लोज द वीडियो, I request you to share it with your friends so that they can also get benefit from this. Thank you student, God bless you.